So I want everyone's now attention towards the screen. Now whatever we have studied, okay. Now with in accordance with that, we'll be understanding the further things. We'll be understanding the next part of that. So do not draw this diagram. This is just for your understanding. Yes, this one. Just a minute. Huh? Yes, are you able to see this figure? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is a particular figure. This is actually we have studied this, and all of you are aware of this figure. So what is written here? This is the timer registers. Okay, we have already know that which are the registers which are responsible for timer, or which are the registers which are related with the timer, and they are TMOD, TCON, TL0, TH0, TL1, and TH1. Okay, so if you want, you can just draw it fast. Okay, otherwise it is not required. This is just to show you that what are the timer registers as well as their size. Can you see the size? The TMOD register. The register is of this is just to show you that what are the timer registers as well as their size. Can you see the size? The TMOD register. The TMOD register is of 8-bit. TMOD TCON register is also 8-bit. Timer 0 registers are two, TL0 and TH1. Both of them are 8 bits. TL1, TH1 are the registers related with timer 1. TL1 is of 8 bit and TH1 is of also 8 bit. Okay, so timer 1 register comprises of 16, but they are bifurcated into TL and TH. There is this TL1 and TL1, TH1. Similarly, timer 0 is a register of 16 bit is bifurcated into two 8-bit registers. They are TL0 and TH0. Okay, and all these registers we have already seen in programming model of 8050. Okay, so this is just to give you understanding that timer registers are these are the timer registers. इसका और एक important है, we will see very soon.
ओके हम जब अभी आगे और देखेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा कि TL0, TH0, TL1 और TH1 का इंपॉर्टेंस क्या है. Okay, so far this is the only registers which are related with the timer. Is it okay to you? Yes, sir. Okay, we will go to the next part now. Now we have understood the timer and the counters. Okay, now in accordance with that we need to understand one more thing. That thing we will see here. Yes, this thing we will see. I want everyone to write down. I want everyone to write down the heading as timer operation. Write down timer operation. Please write down timer operation. Write down the heading. This is important. Timer operation. Already many of you must be knowing. कुछ लोग होंगे जिनको शायद पता नहीं होगा, but they have to just revise whatever I am speaking right now. Okay. So write down the heading as a timer operation and everyone pay attention. Okay, everyone pay attention. What is written on the screen, the same thing I will explain. Okay, but I want everyone to have to know this concept. This is important, and already you must be knowing this. Okay, now here, as already I have told you that if you are giving a crystal frequency, for example, now before that, I will read out this. When programmed to be used as a timer, you know that your 8051 can be used as a timer or it can be used as a counter. If it is used as a timer, we are actually counting the internal clock pulses. We are actually counting the internal clock pulses. And when it is used as a counter, we are counting the external events. We are calculating the external events, and these external events are given at 2 pins, which already we have seen. I think that is T0 और T1 जो हमने कल के लास्ट लेक्चर में देखा था. अगर मुझे काउंटर बोल के यूज करना है तो 2 events will be given. Okay, because you know that you have timer 1 and timer 0. So similarly you have counter 0 and counter 1. तो मुझे काउंटर जैसे यूज करना है तो I have to give the pulses externally. I have to give the pulses externally. Okay. अब यहाँ पे क्या है, I'm I'm explaining you the timer operation. और मुझे अगर टाइमर जैसे यूज करना है तो इंटरनल जो क्लॉक पल्सेस जनरेट होते actually that are getting counted and your timer will be incremented by 1. Your timer will be incremented by 1. वो कैसे हो रहा है, see here. When programmed to be used as a timer, अगर मुझे टाइमर जैसा यूज करना है, द टाइमर इंक्रीमेंट बाय 1. द टाइमर इंक्रीमेंट बाय 1. द टाइमर इंक्रीमेंट बाय 1 एवरी मशीन साइकिल. ओके, आपका टाइमर इंक्रीमेंट होता है आफ्टर एवरी मशीन साइकिल. सो वी हैव सीन दैट ईच मशीन साइकिल इज 12 पल्सेस. ये हमने 8086 में किया था. ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता, please remember this, otherwise some of you can write down this while I explain. You can write down this. Okay, so your timer increments by every machine cycle. एक machine cycle एक increment, एक machine cycle एक increment. What do you mean by machine cycle? Machine cycle consists of your on time off time. On time और off time को मिला के एक machine cycle होती है. That is one time period. Okay, please remember. नहीं समझ में आ रहा तो please let me know so that I can explain you much more in detail. So your one machine cycle comprises of on time off time. On time off time मिलके होता है 1 period. तो एक क्लॉक पल्स बोल रहा हूँ मैं, 1 मशीन साइकिल बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ऑन और ऑफ टाइम मिलके, ऑन और ऑफ टाइम मिलके. ओके, सो दैट टाइम पीरियड में टाइमर आपका एक बार इंक्रीमेंट होता है. सो कहने से वन टाइमर एक बार इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब उसने ऑन और ऑफ टाइम पल्स काउंट किया. सेकेंड ऑन और ऑफ टाइम जब वो काउंट करेगा तो आपका टाइमर फिर से नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा. तो पहली बार इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट हुआ. अगर थर्ड टाइम उसको फिर से वो काउंट इंटरनल क्लॉक को अगर वो काउंट कर रहा है, ओके, तो दैट क्लॉक पल्स और दैट मशीन साइकिल विच कंप्राइजेस ऑफ ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, वो मिलके फिर से वो आपका टाइमर एक से और इंक्रीमेंट हो जाएगा. ओके, सो हियर we have seen that each machine cycle is of 12 pulses. Each machine cycle is of
12 पल्सेस. ओके, तो देखो एक मशीन 12 पल्सेस, मशीन साइकिल इज ऑफ 12 pulses. Therefore 8051 timer count the internal clock frequency divided by 12. इसलिए हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि आई वांट ए वन मशीन साइकिल इक्वल्स टू वन क्लॉक, सो दैट वन क्लॉक विल बी काउंटेड. लेकिन हमने देखा है कि एक ईच मशीन साइकिल इज ऑफ 12 pulses. इसलिए हम जब डिवाइड बाय करेंगे 12 तो हमारा एक पल्स आएगा ना. अगर हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा एक पल्स आएगा. So that your timer should count only one pulse. One pulse comprises of on and off time. Okay, so 8051 timer count the internal clock frequency divided by 12. Okay, and you know that instructions take 1, 2 or 4 machine cycles. Okay, your instructions may take 1, 2 or 4 machine cycles. आपने देखा है 8086 में भी कुछ instructions will take one cycle, some instructions may take 2 machine cycles, some may take 3, some may take 4. Okay, so it depends upon the type of instructions which are using. However, the timers are constant. Timer constant रहने वाला. Your timer will be constant. Now see, for example, ये हमने लिया था last lecture में. For example, if you use 11.0592 megahertz crystal clock, then the running timer will be incremented. Then your running timer will be incremented 11.0592, that is your megahertz divided by 12, जो हमने किया था. Crystal frequency divided by 12, 921600 hertz. और आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? टाइम्स एक सेकंड में कितने बार, एक सेकंड में. सो 921600 टाइम्स अ सेकंड. आप जब इसको 11.059200 डिवाइडेड बाय 12 करते हो, यू आर गेटिंग दिस. और एक्चुअली इसका यूनिट क्या है? हर्ट्स. इसका यूनिट है हर्ट्स. यू कैन ट्राई 11.0592 megahertz divided by 12 should give you 921600 hertz. और 921600 hertz का मतलब होता है एक सेकेंड में कितने बार. सो एक सेकेंड में 921600 टाइम्स, 921600 टाइम्स अ सेकेंड. ओके, तो when your crystal frequency is this, that this crystal frequency is divided by 12, then this is my clock frequency. This is my clock frequency. और इसको अगर मुझे इलेबोरेट करना है तो मैं ये बोलूंगा क्लॉक फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं बताऊंगा टाइम्स अ सेकेंड, टाइम्स अ सेकेंड. अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो डोंट यू गेट अ टाइम पीरियड? यस और नो? इफ आई एम डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, डोंट यू गेट अ टाइम पीरियड? यस और नो? यस सर. बराबर है ना? आई एम गेटिंग अ टाइम पीरियड. आई एम गेटिंग अ टाइम पीरियड. ओके, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो. आई विल जस्ट शो यू दिस. these are very basic concepts. नहीं समझ में आएगा तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी. These are very fundamentals what I am explaining. Yes, we have seen the block. We have seen the block. This is my oscillator. This is my oscillator. Then this is given. This is an oscillator frequency. Yeah, oscillator frequency F. Then it is given to what? It is given to. ये हमने सब किया है. 1/12. We are dividing the oscillator frequency by 1/12 or multiplying by 1/12. Then whatever the output we get, this is my
timer frequency, that is f divided by 12. So this is my timer frequency. This is my timer frequency. Okay, so this is my oscillator frequency. और जब उसको divide by 12 करता हूँ तो you get a timer frequency. You get a timer frequency. अब हमारा यहाँ पे भी वही हुआ था, यहाँ पे भी हमने वही किया था. So divide by 12, this is my timer frequency. Okay, अब यहाँ पे क्या है, टाइमर फ्रीक्वेंसी है 921600 hertz. Okay, 921600 hertz. So I can see here that output of this is 9. How much is the frequency we have got here? 921600. 921600 hertz. This is hertz. 921600 hertz. ये जो डिवाइड बाय करने के बाद आती है ये क्रिस्टल आपका जो टाइमर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज टाइमर फ्रीक्वेंसी. ओके, और ये फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट 92160 टाइम्स अ सेकंड, बिकॉज फ्रीक्वेंसी है ना, एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में कितने टाइम्स, सो 92160 टाइम्स. ओके, और अगर मैं इसको डिवाइडेड करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, so that is 1. Can any one of you tell me what is the answer for 1 divided by 921600? Any one of you please tell me the answer, 1 upon 921600. So 1.08 microseconds. Yes, 1.08 microseconds. Yes, 1.08 microseconds. Okay, so 1.0 microseconds का मतलब होता है ये होता है, ये ऑन टाइम और ये ऑफ टाइम. तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम मिला के, तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम, ये जो है दिस इज योर टाइम पीरियड, एंड दिस इज कितना टाइम पीरियड है आपका, 1.08 माइक्रोसेकंड. तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 92160 टाइम्स अ सेकेंड, 92160 टाइम्स अ सेकेंड, इसका मतलब ये होता है. और इसका मैं जब रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1.08 माइक्रोसेकंड होता है. इसका मतलब होता है ऑन टाइम ऑफ टाइम मिला के एक वन पीरियड, बिकॉज योर वन पीरियड कंसिस्ट ऑफ ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम, और ये टाइम पीरियड कितना है, 1.08 माइक्रोसेकंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कम टू दिस पार्ट नाउ. नाउ हियर इफ नाउ द टाइमर हैज काउंटेड, अभी ये देखो आपको पता है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट with this crystal frequency you have counted how many times, 92160 times. आपका 8051 ने इतना टाइम्स काउंट किया है. अगर if now the timer has counted, अभी ये नीचे वाला पोर्शन देखो, now the timer has counted from 0 to 50,000. अगर आपका टाइमर ने इतना काउंट किया है तो उसको कितना टाइम लगा, सिंपल, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.08 माइक्रोसेकंड. वही क्या है यहाँ पे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर आपने मुझे बताया 1.08 माइक्रोसेकंड. एक माइक्रोसेकंड में ऑन और ऑफ टाइम है. अगर मेरा टाइमर 0 से लेके 50,000 काउंट कर रहा है, अगर मेरा टाइमर काउंट कर रहा है, इंटरनल क्लॉक पल्सेस की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल क्लॉक पल्सेस, अगर मेरा टाइमर 0 से लेके 50,000 तक काउंट किया है तो उसको कितना टाइम लगा है, उसको टाइम लगा है 50,000 मल्टीप्लाई बाय वन टाइम पीरियड, दैट इज 1.08 माइक्रोसेकंड. व्हाट इज आंसर, 0.054253 सेकंड. उसको इतना सेकंड लगा है. नाउ सी हियर, नाउ इतना टाइम लगा. नाउ सी हियर, नाउ if now the timer has counted from 0 to 50,000, then 0.054253 second
has lapsed. Has lapsed. In this way, we can calculate the reverse information to have a delay of x seconds. How much time? How much should the timer count? अभी यहाँ पे now here is the application of a timer now. Here is the application of a timer. For example, अगर मुझे डिले देना है x सेकेंड्स का, अगर मुझे डिले देना है x सेकेंड्स का, आपका टाइमर इतने सेकंड तक उसने डिले देना है, तो मुझे हाउ मच शुड बी द टाइमर काउंट, हाउ मच शुड बी द टाइमर काउंट. इसका मतलब क्या है, अगर 50,000 अगर उसको काउंट करना है तो उसको लग रहा है 0.05423 सेकेंड. अगर उसको एक सेकेंड का डिले देना है तो काउंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए टाइमर की, दैट इज द मीनिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मेरा टाइमर now if my timer is counting 50,000 in 0.054253 seconds, then if I want a delay of x seconds, how much should be the count value? How much should be the count value? Once again I am saying, repeating, अगर ये because इसके बेसिस पे आगे के प्रॉब्लम्स है. ओके, ये नहीं समझेगा तो आगे की चीजें नहीं समझेगा. ओके, so again I am saying 50,000 count is required, or 50,000 count is happening in 0.05423 seconds. और अगर उसको x सेकेंड का अगर डिले चाहिए, then how much should be the count value? How much should be the count value? Okay, so here is the application of 8051, that your 8051 can give you a particular specific delay. Specific delay बोले तो अगर मेरा 5 seconds का डिले मुझे चाहिए, अगर मुझे 5 seconds का डिले चाहिए, अगर मुझे 5 सेकंड्स का डिले चाहिए तो मेरा टाइमर कितना काउंट करना चाहिए? कैन एनीवन फाइंड आउट? कैन एनीवन फाइंड आउट? अगर मुझे 5 सेकंड्स का डिले चाहिए तो मेरी काउंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे यहाँ पे मेरी काउंट वैल्यू 50,000 है, वो 0 से काउंट कर रहा है ना, 0 1 2 3 डॉट 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 50,000. और जब वो 50,000 पहुंचता है तो उसको 0 से लेके 50,000 पहुंचता है तो उसको इतना टाइम लगता है. और अगर मुझे टाइमर को डिले देना है 5 सेकंड का, अगर मुझे टाइमर को डिले देना है 5 सेकंड का, तो व्हाट शुड बी माय टाइमर काउंट वैल्यू? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? Here 50,000 काउंट पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है 0.05 सेकेंड. उसको टाइम लगता है 0.05 0.05 सेकेंड. और अगर मुझे टाइमर को अगर डिले देना है 5 सेकेंड का, ये देखो 0.05, दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड. ओके, जीरो 0.05 सेकेंड्स में वो 50,000 टाइम काउंट करता है. वैसे ही अगर 5 सेकेंड, 5 ज्यादा हो गया, अदरवाइज आई विल टेक ओनली 2 seconds. So instead of taking 5, I will take 2. So if I require 2 seconds, then how much should be the count value? Can anyone give me the answer for this? Can anyone give me the answer? I want the number of count. So question mark is here. Question mark is here. Can anyone of you give me the answer? Am I audible to everyone? So 20 Yes, sir. lakh. Yes, someone has said the answer. So 20 lakh, just confirm. 1 minute. I am also doing it. Divided by 0.05. Yes, it's Yes, sir. 100,000, 10,000 lakh. It's 20 lakh. Is it 20 lakh?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes, sir. So Yes, yes, sir. it is 20 lakhs. 20 lakhs. आई होप आपको पता चला. मुझे मेरे टाइमर को अगर 2 सेकंड का डिले देना है तो मेरे टाइमर ने 0 से लेके 20 lakhs तक काउंट करना है. मेरा जब का टाइमर 20 lakhs तक पहुंचेगा, इसका मतलब मैं 2 सेकंड तक डिले प्रोवाइड किया. इसका मतलब मैंने 2 सेकंड तक डिले प्रोवाइड किया. इसका मतलब मैंने 2 सेकंड का डिले दिया. ठीक है. So here you will be able to understand that with a specific, if you know the time period, that is written here. If you know the time period, yes, if you know this value, that is 921600, and with this 921600, we are getting the time period, that is time period of we have calculated, that is 1.08. With that understanding, अभी मुझे जो भी डिले चाहिए वो मैं डिले प्रोवाइड कर सकता हूँ. सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने सेकंड का डिले मुझे चाहिए. वो हिसाब से I will be able to calculate the number of counts. Okay. Is it clear to everyone? Shall we proceed further? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे देखो, एक छोटा सा प्रॉब्लम है. How many times should the timer be incremented to get 0.5 seconds if 11.0592 megahertz clock is used? 11.0592 megahertz is the crystal clock frequency. और आपको पूछा है कि how many times should the timer be incremented to get 0.5 seconds? वही 0.05 into 921600. 921600. So how many times? 46080 times. 46080 times. Okay. जो हमने ऊपर calculations किए हैं वही calculations are there. Okay, which is nothing new. Okay, so you can write down this problem. You can write down this. How many times should the timer be incremented to get 0.5 seconds if 11.0592 megahertz clock is used? Solution क्या है? सर हाँ बोलो. सर वो 0.5 सेकेंड्स के इंक्रीमेंट के लिए 0.05 से क्यों मल्टीप्लाई किया? नहीं, क्वेश्चन में अच्छा रुको. हाँ, गलत हुआ शायद. हाँ बराबर है. हाँ, ये करेक्शन है. यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.05. आप एक ही वैल्यू कौन सी भी ले लो, 0.5 ले लो या फिर 0.05 ले लो. यस. ओके सर. हाँ, वो गलती हुई, बराबर है. So I think that is a printing mistake. So you can take 0.05 only क्योंकि calculations यहाँ पे ये जो करके दिया है उन्होंने तो 4 उसके हिसाब से दिया है. तो 46080 times. यस सर. हाँ, ये 921600 कैसे आया? क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12. ये वाली वैल्यू. ओके. तो आप 0.05 इंटू क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12 करो या फिर डायरेक्ट ले लो, जैसा चाहिए वैसा. देयर इज नो प्रॉब्लम. इसके नीचे एक नोट लिखो. ये होने के बाद इसके नीचे नोट लिखो. दिस मीन्स दैट इट विल टेक timer will take. नोट में लिखो प्लीज. दिस मीन्स दैट टाइमर विल टेक 0.05 seconds. Timer will take 0.05 seconds to count from. ये कोई तो बताओ. Fill in the blanks. To count from 0 to 46,080. Very good. Yes. To count from 0 to 46080. You are right. So you have understood the concept. I hope. I'm assuming that you have understood 0 to 46080. Yes. ये सब बेसिक्स है, ये सब फंडामेंटल्स है. ये समझेंगे तो आगे की चीजें समझेंगे. Shall we proceed further now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So
we will proceed further. Okay, now write down the heading. Write down the heading. Now write down the heading. आपकी अभी हेडिंग होनी चाहिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन. ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो टाइमर मोड्स. टाइमर मोड्स अभी हम देखने वाले हैं मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3. ठीक है ना. तो अभी आपकी हेडिंग होनी चाहिए टाइमर मोड्स, MODES, टाइमर मोड्स. और उसके नीचे लिखो नंबर 1. हम पहले देखने वाले हैं मॉड 0. हम पहले देखने वाले हैं मॉड 0. हम पहले देखने वाले हैं मॉड 0. सो एनी वन ऑफ यू टेल मी मॉड 0 में ऑपरेटिंग आपने क्या लिखा था? मॉड 0 में क्या हो रहा है? आपने सिर्फ वो जो टेबल बनाया था. गो बैक टू द प्रीवियस पेजेस एंड टेल मी मॉड 0 में एक्चुअली आपका टाइमर काउंटर क्या कैसे यूज हो रहा है? ऑपरेटिंग मोड. एनी वन ऑफ यू? सर 13 हाँ. बिट टाइमर और काउंटर. हाँ, यस, यू आर राइट. तो आपने ये पिछले बार लिखा है टेबल में कि इट इज यूज एज अ 13 बिट टाइमर और काउंटर. और उसके लिए आपका M0 और M1 वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर दोनों भी 0 होना चाहिए. हाँ. और M0 M1 कहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को? सर Tmod. Yes, Tmod register. Okay, Tmod register. Now I want everyone to pay attention. This is important now. अभी आगे की चीजें आपको फटाफट समझ में आएंगी. There is no problem. Okay. Now here as you have written in the table, it is a 13-bit timer or counter. तो आपने पहला नंबर लिखा नंबर 1. आपने लिखा mod 0. mod 0 के बाद में लिखो write down in mod 0. In mod 0 the timers are used as 13-bit timers. The timers are used as 13-bit timers. 13-bit timer. अभी यहाँ पे ध्यान दो. Now no one will write. Now everyone will pay attention and listen. Everyone will pay attention and listen now. अभी जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये वाला, ये मैंने जब बताया था, अभी मैं मॉड 0 में यूज कर रहा हूं. आप मॉड 0 में टाइमर 0 यूज करो या फिर टाइमर 1 यूज करो. लेकिन आप कोई सा भी अगर टाइमर यूज करते हो तो आप 13 बिट यूज कर रहे हो. 13 बिट बोले तो 13 में के 8 बिट लोअर वाले यहाँ पे 8 बिट ऑक्यूपाई हो गए. यहाँ पे 8 बिट ऑक्यूपाई हो गए. बाकी के रिमेनिंग कितने हो गए रहे? 8, 9, 10, 11, 12, 13. ऊपर के जो 5 बिट है वो आपको हायर बिट से लेने पड़ते हैं. तो क्या ना ऐसे 8 + 5 that will give you 13 bit. और हायर बिट के जो रिमेनिंग बिट है they are not used. Okay, they will not be used. So कौन से रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं? टाइमर 0 के अगर मैं बात करता हूं तो TL0 के पूरे 8 बिट्स और TH0 के लोअर 5 बिट्स. अगर मैं टाइमर 1 यूज कर रहा हूं तो TL1 का पूरा 8 बिट्स और TH1 का हायर का ओनली 5 बिट्स. ओके, सो 8 + 5 13 बिट फॉर टाइमर 1 और टाइमर 0 की भी 8 + 5 13 बिट्स. तो दोनों में से आप कौन से भी टाइमर 0 या टाइमर 1 यूज करो. लेकिन अभी आपको पता चला है कि 13 बिट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो लोअर के 8 बिट और हायर के 5 बिट्स दे आर यूज. ओके, अभी मैं देखो क्या बता रहा हूँ. यस, सर एक क्वेश्चन. हाँ. सर स्पेसिफिकली 13 बिट्स को ही क्यों काउंट करना है? वो मैन्युफैक्चरर ने किया है. आपका मॉड 0 13 बिट टाइमर बोल के यूज हो रहा है. आपका मॉड 0 13 बिट बोल के यूज कर रहा है. नो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि उसने 13 क्यों किया, 12 क्यों नहीं किया, 10 क्यों नहीं किया. दिस इज नॉट आवर इंटरेस्ट.
हमको जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो आईसी बनाई 8051 उसके लिए उसने 13 बिट यूज करने को बोला है. ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मॉड 0, दैट इज अ 13 बिट टाइमर. ओके, तो मैंने आपको बताया कि 13 बिट आपको कौन कौन से बिट्स लेने, लोअर के पूरे 8 और हायर के 5 बिट्स. इज इट ओके? ओके सर. हाँ, अभी जब मैं बता रहा हूँ कि लोअर के 8 और अपर के 5, लोअर के 8 और अपर के 5. ओके, अभी मुझे बात बताओ, अभी ये जो वैल्यूज है ना 13 बिट, नाउ दे विल बी यूज एज अ काउंट वैल्यू. नाउ दे विल बी यूज एज ए काउंट वैल्यू. वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. दे विल बी यूज एज ए काउंट वैल्यू. दे विल बी यूज एज अ काउंट वैल्यू. Now, when you are taking a 13 bit, I have told you that you will be using the 13 bit. You will be using the 13 bit. You will be using the 13 bit. Now this 13 bit, रुको, एक गलत किया मैंने. I have done something wrong. Yes. Please make the correction. There is a small correction. The correction is, yes, the correction is total 8 bits from higher. Total 8 bits from higher. And 5 bits. That the 5 bits. Okay, that is bit number 0 to 4. Bit number 0 to 4. Lower 5 bits will be from the lower. Okay, मैं फिर से बता रहा हूँ. अगर मैं टाइमर 1 यूज कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ 13 बिट्स यूज करना है, तो हायर के पूरे 8 बिट्स और लोअर 5 बिट्स फ्रॉम TL1. सिमिलरली हियर 8 बिट्स पूरे TH0 के, 8 बिट्स पूरे TH0 के और लोअर के 5 बिट्स. ओके, बस वही एक करेक्शन है. So that thing I have understood. That thing I came to understand from this particular figure. Okay, so remember this. So यहाँ पे देखो TLX और THX. ये X बोले तो you can replace it by 0 और you can replace it by 1. अगर मैं replace by 0 करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं टाइमर 0 की बात कर रहा हूँ. अगर मैं उसको 1 से रिप्लेस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं टाइमर 1 की बात कर रहा हूँ. ओके, टाइमर 1 की बात कर रहा हूँ. अब मैंने बताया था कि TH के पूरे 8 के 8 बिट्स और आपका TLX का लोअर के 5 बिट्स. ओके, तो मुझे एक बात बताओ, when all your these are starting from 0 0 0 0. अब ये 0 0 का क्या मतलब होता है? ये आपको पता है कि 8 बिट का होता है. तो ये 0 0 का मतलब होता है ये 0 के 0 0 0 0, ये 0 का 0 0 0 0, ये 0 का 0 0 0 0, ये 0 का 0 0 0 0. So these are 8 bits and these are 8 bits. Okay, and I can use only 13 bits. So when I am counting from 0 0 0 0 to 0 0 0 0 2, now you tell me the decimal values. Okay, now you tell me the decimal value. I mean to say that when you are starting from 0, till what value you can go? When only I am using 13 bit. When I am using 13 bit, इसका मतलब I can go from 0 0 0 0 to 2. Now ये 0 मैं अब मैंने आपको बताया कि 8 bits can be used. So this will be now F, और वो F का मतलब होता है 1 1 1 1. ये वाला भी हो जाएगा F, और ये F का भी मतलब 1 1 1 1. ओके, अब इसके रिमेनिंग 5, तो लोअर ये 0 का हो जाएगा अगेन F, ये F का हो जाएगा 1 1 1 1, और फिफ्थ वाला जो बीट है वो 1 रहेगा. इसका फिफ्थ वाला जो बीट है वो 1 रहेगा. सो ये आपको देखा 1 F F F, 1 F F F. So this is in hexadecimal now. This is in hexadecimal. If I want to express this one into the decimal value, what you will say? I will go from 0 0, if all 8 times 0 to all 8 times 1. All 8 times 0 का मतलब होता है 0 0,
all 8 times 1 का मतलब होता है FF. अब यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, that is 0 0 0. I will go to 1 1 1 1. So that 1 1 1 1 is F. That 1 1 is 1 1 1 is F. That 1 1 1 1 is F. Okay. And जो फिफ्थ वाला बीट है, the fifth वाला बीट है, that will be 1. So I can say I have utilized all the 13 bits. और फिफ्थ वाले की जो बीट है हायर 6 7 और 8 वाला बीट, all will be zeros because they are not used. They are not used. So what I mean to say that using 13 bit I can go from 0 0 0 0 to 1 F F F H. अगर मुझे डेसिमल में बताना है तो I will say I will go from 13 bits of zeros to 13 bits of ones. I will go from 13 bits of zeros to 13 bits of ones. And 13 bits of zeros is nothing but 0 0 0 0. And 13 bits of 1 means nothing but 1 F F F H. I hope you have understood this. नहीं समझा तो मुझे पूछो. सर हाँ सर ये जो टीएल एक्सेस में 5 बिट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो सर ये कैसे, मतलब वो सर समझा नहीं हम लोग को, कैसे समझेंगे कि 5 बिट्स हमको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखना है? हेक्साडेसिमल में इजी है ना. Here all of you, this is my TL. सपोज मैं टाइमर 0 यूज कर रहा हूँ, so TL0. मैं TL0 और TH0 मैंने बताया था पूरे के पूरे 8 बिट ऑफ TH. ये दिस इज TH0 एंड दिस इज TL0. ये देखो पूरे के पूरे 8 0. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, मेरा काउंट स्टार्ट होगा 0 से लेके, तो 0 का मतलब ऑल बिट्स शुड बी 0. सी हियर नाउ 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0. आपको पता है TH 8 बिट का है, ये देखो मेरे 8 बिट सब जीरोस. और TL0 ये भी मेरे 8 बिट का है, इसमें से मैं कौन सा यूज करूंगा? ओनली 5 बिट. सो 0 0 0 0. कैन आई से दीज आर द निब्बल वैल्यू? 4 बिट्स इज इक्वल टू निब्बल. ये 4 बिट और एक 0 लेना पड़ेगा, तब जाके होगा 5 बिट. ये 5. ना ये जो है 5 6 7 और 8 एक्चुअली ये वाले बिट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ. मुझे 13 बिट चाहिए ना, तो 13 बिट बोले तो ये 5 और ये 8 और 5 13. तो मैं काउंट करूंगा यहाँ से. नाउ दिस विल बी बाय डिफॉल्ट 0 0 0. ये डिफॉल्ट 0 0 रहेंगे क्योंकि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ. तो मुझे बात बताओ, मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से और एंड करूंगा कहाँ तक? मेरा ये 16 बिट है ना, 13 बिट है ना, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? जब तक ये पूरे के 13 बिट 1 1 नहीं होते. तो मैं काउंट करते रहूंगा, काउंट बढ़ाते रहूंगा. लास्ट में मैं कहाँ तक पहुंचूंगा? लास्ट में मैं पहुंचूंगा व्हेन ऑल बिट्स आर 1 1 1 1 1 1 1 1 1. This is also 1 1 1 1 1. और ये 3 0 वैसे के वैसे, उनको हाथ नहीं लगाना है, वो वैसे के वैसे. सर मतलब ये जो हम ये लोग 4 बिट्स है लोअर साइड, नहीं, मतलब जो हम लोग रुको पहले मुझे सिखाने दो, बाद में आई विल टेक योर क्वेश्चन. So when I'm taking all 13 bits starting from 0 to all 13 bits 1 1 1 1. Okay. So can I say this 4 1 2 3 4? These 4 ones are nothing but F in hexadecimal. These 4 ones are nothing but again F in hexadecimal. These 4 ones are again F in hexadecimal.
and these 4 nibble in hexadecimal, it will be what? It will be what? Sir, 1. सर 1 Yes, होगा. yes, 1. Similarly, here 4 nibbles in hexadecimal will be 0. These 4 nibbles in hexadecimal will be again 0. These 4 nibbles in hexadecimal is again 0, and these 4 will be again 0. So these are in hexa. These are in hexa. So can I say in mod 0 you can go from 0000 to 1FFF? Yes or no? By using 13-bit. By using 13-bit. Yes or no? Yes sir. Yes. So what I meant to say that in mod 0, your registers, that is TL0, TH0 for timer 0, or your register TL1 or TH1 for timer 1, can out of the 16 bit, only 13 bits can be used. That is why mod 0 is called as only 13 bits are used. So only 13 bits are used. So when 13 bits are used, you can go from the count can go from 0000H to 1FFFH. Now if you have any questions, now you can ask. सर मुझे डाउट है सर, ये हाँ. जो लोअर ऑर्डर बिट्स है ये TH0 में हम स्टोर कर रहे हैं, और जो हायर ऑर्डर मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो TL0 में यूज कर रहे हैं, मतलब समझा नहीं मैं. सर हम लोग जो लोअर ऑर्डर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं सर, लोअर ये वाले हाँ लोअर ऑर्डर बिट्स हैं हाँ सर. नो सर वो लोअर ऑर्डर तो वो हो जाएगा ना जो हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, जो 1FFH हम देख रहे हैं. तो सर अच्छा जो वैसा TH0 में ठीक है मैं समझा मुझे. तो आप फिर वैसा मत लो. आप क्या लो, आप ऐसा करो, यू आर काउंटिंग फ्रॉम 000H to FF1FH. नाउ इट इज फाइन. यस सर, मतलब सर हाँ. हम लोग हाँ मुझे पता है, मुझे समझ गया. आप लिखते हो ऐसा TH और TL. अगर मुझे ऐसा लिखना है तो आपके TL में आपको लोड करना है 00, आपके TH में लोड करना है 00, और बाद में वो इंक्रीमेंट करते कहाँ तक जाएगा, तो TL में आपका होगा 1F और TH में होगा आपका FF. नाउ अभी बराबर है. मतलब सर वो ऐसे होता ही है, मतलब जैसे मतलब जो नहीं क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि TL0 एक सेपरेट रजिस्टर है, TH0 एक सेपरेट रजिस्टर है. हमारा सिर्फ कंसर्न है कि हम उसमें क्या लोड कर रहे हैं. TH में मुझे लोड करना है 00 और वो जा सकता है मैक्सिमम FF तक. TL0 में मुझे लोड करना है 00 और वो जाता है मैक्सिमम 1F तक. खत्म. अगर आपको ऐसा नहीं पसंद आ रहा तो आप ऐसा बताओ. तो अगर ऐसा बता रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ the values will start from 0000 and it will go to FF1FH. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि my count value will go from 0000 to 1FFFH. सर बट मुझे एक और डाउट है सर. हाँ. अगर दोनों रजिस्टर्स इंडिपेंडेंट हुए तो हाँ. सर जब हम लोग TH0 का काउंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लोअर साइड का अगर हम काउंट स्टार्ट करें तो साथ में फिर वो TL0 भी काउंट करना स्टार्ट कर देगा. तो सर हमें कोई मतलब हम सीरियली आगे नहीं बढ़ रहे हैं काउंटिंग में, हम लोग तो दोनों साइड के रजिस्टर्स को साथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को. नहीं बराबर है ना, ये दोनों साथ में ही काम करेंगे. जैसे जैसे इंक्रीमेंट आपका होगा 1 2 3 4, वैसे वैसे ये दोनों भी वैल्यूज चेंज होंगे. सिर्फ मुझे ये बताना था कि हम इसमें क्या लोड कर सकते हैं 00 से लेके 1F, और हम इसमें क्या लोड कर सकते हैं 00 से लेके SF. मिनिमम वैल्यू 00, मैक्सिमम वैल्यू SF. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 00, मैक्सिमम वैल्यू 1F. मुझे ये बताना था कि हम लोड क्या कर सकते हैं. और जब काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से लेके,
0 1 2 3 4 5, तब ये दोनों भी साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंट होते सर तो मतलब दोनों अलग अलग टाइमर है क्या? हैं। दोनों अलग अलग टाइमर नहीं, एक ही टाइमर है। ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो फिगर क्या बता रहा है, ये देखो mod 0 ऑपरेशन TLX THX कैन प्रीलोड टू एनी वैल्यू बाय सॉफ्टवेयर। मुझे अगर 0 0 से करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मेरा मिनिमम वैल्यू है, आपको बीच में से कहीं से भी डालना है तो कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो। ये देखो काउंट अप बाय 1 ऑन एवरी क्लॉक साइकिल। अब ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 1, देखो नेक्स्ट काउंट वैल्यू क्या आई, 0 0 0 1। आपकी नेक्स्ट काउंट वैल्यू ये आई। बाद में देखो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, मैक्सिमम कहा हो गया, 0 0 से स्टार्ट किया था, मैक्सिमम 1f तक गए, और ये भी मिनिमम 0 0 से ये किया, काउंट करते करते आप कहाँ तक गए, FF तक गए। तो ये जो है ना, दिस इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल काउंट 1f FF H इज द फाइनल वैल्यू। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ था। इसके बाद नेक्स्ट काउंट पे क्या हुआ, 0 0 0 1 H। इसके नेक्स्ट काउंट पे फिर से वैल्यू चेंज होगी, करते 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 लास्ट वैल्यू में कहाँ तक मैक्सिमम पहुंचा हूँ, 0 0 का हो गया 1f और 0 0 का हो गया FFH। ये लास्ट वैल्यू, ओके। और जब लास्ट वैल्यू हो जाती है फिर से हम 0 0 के फिर से वो 0 0 हो जाता है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट जब 1f FF आता है ना, तो ये होने के बाद नाउ देयर इज ओवरफ्लो, आगे का काउंट वैल्यू नहीं जाता, वो बाद में वो रीसेट होके कहाँ पे आता है, 0 0 0 0 पे जाता है। दैट इज द वैल्यू। तो ये जब पहुंचता है ना, देन इट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो, तब वो ओवरफ्लो होता है, देन इट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो। अभी समझ आपको? हाँ सर। हाँ, so what I mean to say that your values will the initial value or final value. Initial value will can start from 0 0 and final value is this. इसका मतलब ये भी है कि इसके दोनों के बीच में की वैल्यूज आप स्टार्टिंग वैल्यू ले सकते हो, लेकिन फाइनल वैल्यू यहाँ तक पहुंचती है, और जब यहाँ तक पहुंचती है तब वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद वो रीसेट होता है 0 0 0 पे, वो रीसेट होता है 0 0, यानी फिर से 0 0 पे होके वो रीसेट हो जाता है। ओके, सो अगेन आई एम सेइंग यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 0, यू कैन गो विद 1f FF। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग जो काउंट होता है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको बीच में से कौन सा भी काउंट लेना है वहां से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एंड होगा यहाँ पे, एंड होगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे एंड होता है तब वो ओवरफ्लो हो जाता है और बाद में वो रीसेट होता है यहाँ पे, बाद में वो रीसेट होता है वो यहाँ। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस नाउ। Yes, sir. यस सर। ओके, हाँ, सो आई वांट एवरीवन टू ड्रॉ दिस। mod 0 ऑपरेशन लिखो, ये सब लिखो, कैन प्री लोड टू एनी वैल्यू बाय सॉफ्टवेयर। ये देखो ये सॉफ्टवेयर लोड करता है, और टू एनी वैल्यू का मतलब होता है ये दोनों के बीच में कौन सी भी वैल्यू हम स्टार्टिंग बोल के लोड कर सकते हैं। ओके, काउंट अप बाय 1 ऑन एवरी क्लॉक साइकिल। इसके बाद आएगा ये डॉट 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 का मतलब होता है हर एक काउंट के बाद आपका टाइमर इंक्रीमेंट होगा बाय 1, लास्ट में वो पहुंचेगा यहाँ तक। यहाँ पे होने के बाद रिसेट्स आफ्टर, यानी यहाँ पे होने के बाद वो रिसेट होता है आफ्टर व्हाट 31D। आप मैंने जो आपको बताया था ना 1 वो जो था ना उसका डेसिमल वैल्यू आप अगर देखोगे दैट इज 31D, दैट इज 31D। ओके, इट इज 1 1 1 1 1। okay, so that is for 1f, 1 1 1 1 1, that is for 1f। okay, and this is all 1 1 1 1। और यहाँ पे होने के बाद वो रीसेट होने के बाद कहाँ पे रीसेट हो रहा है, यहाँ पे। एवरीवन हैज ड्रॉन दिस? सबने ड्रॉ किया ये? नहीं सर, एक मिनट। हाँ ठीक है, बनाओ। I am taking I am going very slowly so that your concept should be clear।
and you will be able to understand the later part very with ease. Okay, यानी आपको difficulty नहीं होगी समझने के लिए. You will be able to understand this properly. हो गया, सबने ड्रॉ किया? Yes, sir. I have taken the attendance. Okay, okay. Yes, sir. हाँ चलो. Okay, sir. Okay, okay. Everyone has drawn this? Yes, sir. हाँ, एक मिनट. Two lectures. हाँ Sir, हाँ, बोलो. sir आप 2 लेक्चर ले रहे हो? नहीं, अभी मैं बंद कर रहा हूँ, 2 मिनट के बाद बंद कर रहा हूँ. Okay. हाँ. So if you have drawn this, I will just take 2 minutes. Yes. ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा. राइटिंग पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा. लेकिन अभी ये समझो ये फिगर क्या है जो मैंने अभी आपको सिखाया. अभी मैंने इसके पहले जो आपको बताया था मॉड 0 के बारे में, अभी वही देखना है हमको. एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस फिगर. ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ. आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स, सो डू नॉट लीव एंड जस्ट आई एम गोइंग टू टेक 2 मिनट्स. लिसन. ये जो फिगर है, दिस फिगर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. देखो ये फिगर, मेरा कर्सर देखो. ओके, नाउ हियर oscillator divided by 12, f by 12. Okay, now if I want to use as a timer, this switch will be here. If I'm going to use as a counter, this switch will be down, and this is pin number T0 या फिर T1. X you can replace by 0 or it can be replaced by 1. Okay, ये आपका स्विच है. ओके, एंड ये स्विच ऊपर नीचे कब जाएगा? when your C/T bar अगर 0 है then it is used as a timer. अगर C/T bar अगर 1 है तो it is used as a counter. ये वाला पार्ट while explaining you T mod मैंने बताया था. ओके, TR0 TR1 TR1 then gate and INTX, ये सब मैंने पढ़ा है. X is nothing but you can replace 0 और 1. अगर टाइमर 0 तो X 0, टाइमर 1 तो टाइमर 1, X1. वैसे यहाँ पे भी वही. ओके, so this part already I have explained. Now if I'm using as a timer and if I want to count in mod 0, ये स्विच जाएगा नीचे. Then can you see here TLX0 and TX0? THX का 8 बिट और TLX का 5 बिट. टोटल 8 + 5 13 बिट्स. ओके, तो आपने जो भी अगर वैल्यू इसमें काउंट में डाली है, इनिशियल मुझे इसमें डालना है 0 0 0 0. तो ये सब मेरा 0 0 और वहां से मैं काउंट स्टार्ट करूंगा जब तक ये पूरे 8 बिट्स 1 1 1 1 नहीं होते और इसमें के पूरे 5 बिट 1 नहीं होते. अगेन आई एम रिपीटिंग, इनिशियली ऑल बिट्स आर 0 बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0. लास्ट काउंट कहां तक जाएगा? जब तक वो 8 बिट्स 1 नहीं होते और ये 5 बिट्स 1 नहीं होते. 8 बिट्स 1 बोले तो FF, 5 बिट्स 1 बोले तो 1F. ओके, वो सब अचीव होने, वो जब आता है देन देयर इज अ रीसेट एंड देन देयर इज अ ओवरफ्लो. तो ओवरफ्लो बताता है आपका TFX फ्लैग में, और ये टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग है. और ये टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा TCON रजिस्टर में. you will be able to see this bit in TCON रजिस्टर, जो हमने अब तक नहीं लिया है. लेकिन TCON के हमने एक रजिस्टर लिया है, that is TR0 and TR1. that is timer run for timer 0 and timer run for timer 1. अभी उसमें और एक बीट है, that is TF and that is timer 1 overflow flag. ओके, तो मुझे ये बताना है कि जब ये फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है, that is 1 1 1 1 1, 8 bits 1 and 5 bits 1, then there is a overflow. That overflow is reflected in TFX bit. This TFX bit is present in TCON register, and जब ये 1 हो जाता है then there is a interrupt. Okay, then there is a interrupt. Okay, so X जहां दिख रहा है
is nothing but 0 for timer 0, 1 for timer 1. Okay, these are the control bits because this is going to control your operation. आपको कहाँ तक काउंट करना है, okay, कहाँ तक काउंट करना है, okay. आपकी फाइनल वैल्यू याद रखे. I meant see what I meant to say that you can go from 0 0 0 0 to 1 F F F. लेकिन उसमें से आप वो दोनों काउंट के बीच में आप कौन सा भी स्टार्टिंग और एंडिंग कर सकते हो. मैंने बताया था फाइनल विल बी 1 F F F. आपको अगर वो नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपको डिले कितने का चाहिए, आपको डिले कितने का चाहिए. मुझे ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है. ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, आप एंड कहीं पे भी कर सकते हो. लेकिन आपको खेलना कहाँ है, ये दोनों के बीच में खेलना है. 0 0 0 0 H to 1 F F F H. ये दोनों के बीच में आप स्टार्टिंग कहाँ से भी कर सकते हो, एंड कहाँ तक भी कर सकते हो. ओके, तो एंड और स्टार्टिंग यहाँ पे मेंशन होते हैं. और जब फाइनल वैल्यू पहुंचती है देन देयर इज ओवरफ्लो. ओवरफ्लो होने के बाद देयर इज एन इंटरप्ट. ओके, एंड ओवरफ्लो फ्लैग जो है TF, दिस इज अवेलेबल इन TCON रजिस्टर. ओके, so detailed understanding of this we will see in the next lecture. You can leave, any one of you can किसी को डाउट है तो you can stay and ask me the question. Others can leave. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.